Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Our today's topic is in MS Excel how to change the column width and how to generate a new series, how to insert a row and how to insert a column. Same, deleting a column, deleting a row. Firstly, we will learn how to change the column width. See, I already made a table at here with the heading roll number, and at here column heading student name, and at here class, subject and then marks. See, our student name at here in the formula bar it shows completely, but in column due to the width of the column it don't shows us completely. How we can complete it? By default the width of the column cell is 8.43. कैसे मेजर होती है ये? By using the correctors. But if we want to increase this and we want that कि complete name show हो, मान लो हमें यहाँ पे surname भी देनी हो, then we don't have enough space. तो हम कैसे देंगे? इसकी width को कैसे बड़ा करेंगे? Firstly, select the column. Select the column. After selecting the column, put the arrow at the very right corner of that cell. Firstly, select the column and then put the pointer, mouse pointer at the right side, and you see that the shape of the our pointer changes. Both side arrow आ जाएंगे हमारे, and we have to drag it. After selecting, we have to drag it. जितनी हमें इसकी width चाहिए उतना हम इसको drag करेंगे. See, our column width changed now. बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है इसकी? 8.3. इन द सेम वे हम अपनी रो की हाइट भी चेंज कर सकते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट हमारी रो की हाइट क्या होती है? 15.00. ये हमारी पॉइंट्स में मेजर्ड होती है. इन द सेम वे हम अपनी रो को सेलेक्ट करेंगे. जब ये सेलेक्ट हो जाएगी इसके लास्ट पॉइंटर पे ले आएंगे. इसके भी दोनों तरफ कैसे आ जाएंगे? एरो आ जाएंगे. देन बाय सेम वी आर ड्रैगिंग इट. जितनी हमको इसकी हाइट चाहिए उतनी हम इसकी height कर लेंगे. In this way we are changing the width and height of the column. Now we will learn that how we insert a row, new row. I have a new student, मान लीजिए new admission, and I want that the name of the student is Anya, ANYA, and उसका रोल नंबर क्या बनेगा? रोल नंबर 1. सो दैट मुझे पूरी लिस्ट डिलीट करनी पड़ेगी, देन न्यू एंट्रीज करनी पड़ेंगी? नो, आई हैव एन ऑप्शन, सेलेक्ट रो, देन गो टू द होम. आपको जहां वो रो चाहिए उससे पहले हम उसको क्लिक करेंगे. सेलेक्ट रो, एज आई शो यू हमारी रो सेलेक्ट हो जाएगी तो हमारा ये ब्लू कलर की शो होने लगेगी. देन गो टू द होम टैब, क्लिक ऑन द होम टैब एंड एट हियर इंसर्ट, press that down arrow key and insert sheet rows. One row is inserted at here, and there is another option, like I need again one more row. Select that row, press the right arrow key there and then insert. Click on the insert and it inserts our new row at here. In the same way, if we want any new column, then select that column. जिस column से पहले हमें वो column चाहिए, select that column, press the right key button and press insert. हमारे पास नया column आ जाएगा. Otherwise, second option is go to the home tab, press the insert button and insert cell. Here it is. Okay. In this way we can insert new row and new column in our table. Now how to delete? Now we don't have anything to insert in this. So how we can delete? Select that column, again press the right button and press the delete button. Otherwise select that row or column which we want to delete. Select that and on the home tab click on that delete. Our row deleted.
Now we learn that how we can generate a series. मान लीजिए मुझे यहाँ रोल नंबर लिखने हैं. Excel gives us a very good thing that we can firstly write one or two things at here and then we drag and drop. Only write two numbers at here, 1 and 2. Then select these both numbers. इन दोनों को select कर लीजिए and at the very right corner, right bottom, इसका सबसे लोअर कॉर्नर देखिए राइट वाला, our cursor changes into plus. प्लस में चेंज हो जाएगा हमारा कर्सर एंड देन ड्रैग दैट. जहाँ तक हमें नंबरिंग चाहिए हम इसको ड्रैग करेंगे और वहाँ तक हमारे नंबर्स आ जाएंगे. सी 1 2 3 4. देयर इज नो नीड टू टाइप द नंबर्स. इन द सेम वे अगर मेरे पास एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने देने होते देन इट ऑल्सो जनरेट दैट थिंग. लाइक मान लीजिए मुझे सिर्फ सारे नंबर्स मैथ्स के ही देने हैं, देन ऑल्सो देयर इज अगेन वी विल डू द सेम थिंग फॉर दैट. Press on that and at here put your cursor. इसके सबसे लोअर पार्ट में राइट हैंड साइड में हम अपना कर्सर पुट करेंगे. आवर कर्सर चेंजेस इनटू प्लस साइन एंड देन ड्रैग इट. जहां तक हमें ये मैथ्स लिखना है इट राइट्स ऑटोमेटिकली. एंड सेम इफ वी वांट टू राइट जनवरी फेब्रुअरी वी हैव टू राइट सिंपल जनवरी and then we select January and from the corner bottom right corner we just drag it. When our cursor changes into plus sign then it writes January February. In the same way अगर हमें डेट लिखनी है तो हम डेट को भी एक या दो फॉर्मेट में लिखेंगे और हमारी डेट भी इसी तरह से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. डेट का हमारा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है दैट इज इफ वी वांट टू इंसर्ट डेट कि ऑटोमेटिकली फिल कर दे देन देयर इज ऑप्शन. हमें इस फॉर्मेट में लिखनी होती है डेट. इट्स द फॉर्मेट ऑफ आवर डेट. आई एंटर्ड एट हियर 12 मई 2020 अगेन 13 मई 2020 एंड अब मैं इसको जब ड्रैग करूंगी ना, सी क्या होगा, ये मेरा बाय डिफॉल्ट जब मैं इसको ड्रैग करूंगी अपने आप ये फिल कर देगा. अब हमें इसमें दोनों अपने सेल को सेलेक्ट करना है. देन पुट द कर्सर एट द बॉटम राइट कॉर्नर व्हेन इट चेंजेस इनटू प्लस. ड्रैग जब तक हमको जितनी डेट चाहिए ड्रैग इट अकॉर्डिंगली दैट डेट्स एंटर हो जाएंगी. इन दिस वे वी कैन जनरेट आवर सीरीज ऑटोमेटिकली. एंड देन हाउ टू फॉर्मेटिंग वर्कशीट. हम वर्कशीट को फॉर्मेट कैसे करते हैं. फॉर्मेट मीन्स इफ वी वांट टू चेंज द फॉन्ट ऑफ द डाटा देन सेलेक्ट द डाटा. पूरे डाटा को हमने सेलेक्ट किया एंड बोल्ड. हमारी सारी लिस्ट क्या हो जाएगी, बोल्ड हो जाएगी फ्रॉम हेयर. एंड अगर हमें फॉन्ट साइज चेंज करना है तो 11 की जगह 12. सारी लिस्ट का साइज हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा. अगर 12 की जगह और बड़ा करना है तो ये हमारी सारी लिस्ट का साइज अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा. एंड इफ वी वांट कि इसका हमारा कैलिब्री ना होकर कोई और फॉन्ट हो देन वी आल्सो डू फ्रॉम देयर होम टैब, चूज द फॉर्मेट विच वी वांट टू गिव. ओके एंड देन डेट का देखो इनफ स्पेस नहीं था तो उसका फॉर्मेट चेंज हो गया. तो हमने अपने सेल की विड्थ बढ़ा दी. एंड देन हाउ टू चेंज द फॉन्ट साइज एंड हाउ टू चेंज द फोर fonts. And now how to, if we want to give the heading to our sheet then what I can do. मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपनी शीट की हेडिंग ले ली. क्या है, ये मेरी स्टूडेंट्स की डिटेल है. देन it doesn't look nice ना. Then again we will click on that cell and lower our corner, bottom corner, drag it. जहाँ तक हमें इसका नेम लिखना है हम चाहते हैं वहाँ तक हम इसकी क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे.
by dragging it. यहाँ तक में हमें लिखना है. हम क्या करेंगे, merge and center. ओके, एंड नाउ पे हम इसका क्या करेंगे, साइज चेंज कर देंगे. फ्रॉम हेयर बॉल, इंक्रीज द साइज. ओके, italic. We can change the color from there, font color from there, and if we want to change font color की बजाय हम अपना अगर सेल का चेंज करना चाहें कलर तो यहाँ से कर सकते हैं. ओके